A lot of these things are those things जो मैं खुद कर रहा हूँ, and my knowledge is limited to the things जो मैंने खुद experience की हैं. So whatever you hear today, you're welcome to check with your own research, and if you like what we say, so most of what I have to say is backed by a lot of scientific research. So we won't be able to get into that scientific research today because we have to cover a lot of things that we should avoid. Iodized salt जो है, it fails to give us the minerals that we need और जो एक अच्छी salt में होने चाहिए. A very good replacement for iodized salt is Himalayan pink salt, जिसकी पाकिस्तान में बहुत वाफर और readily available है. Himalayan pink salt का ये फ़ायदा है कि it has all the minerals जो हमारे body में जिसकी ज़रूरत है, और generally due to the commercial farming जिस किस्म की हो रही है, the soil has been overworked and soil की जो mineral depletion हुई है, उस soil को हम chemicals ज़्यादा लगाते हैं, pesticides ज़्यादा लगाते हैं, and the nutrient value of our foods has been reduced because of this. और बहुत सारी बीमारियाँ और fatigue की जो वजूहात हैं वो minerals की deficiency है. Second thing that we also apply at our home is that we don't at least happily use, we still have some, but नाश्ते में at least we're very particular that we don't use coated frying pans. They're more expensive, they're imported, they look nice, it's got जैसा French भी होंगे, different countries के होंगे, and you get attracted कि यार ये अच्छी चीज़ है. non-stick coated frying जो utensils हैं, cooking utensils हैं, उसमें जो coating हुई है, you're welcome to search on it online. It's linked to cancer. So I would suggest that you go back to very basic iron tawa जो हम रोटियों के लिए यूज़ करते हैं. Make your omelette on it. It's very easy. That's we make our omelette on it, and you can cook your food on it. Or I've seen proper iron skillets जो बाहर भी यूज़ होते हैं. I haven't seen them here because iron आपके बॉडी में जब वो हीट से आयरन भी फूड में आएगा, बट आयरन आपके लिए उस तरह बुरा नहीं है जिस तरह वो जो कोटेड फ्राइंग पैन्स का जब एक लीच होके आएगा ना फूड में, उसका इन्फ्लुएंस हीट से. सो अवॉइड दैट एज मच एज यू कैन. मगर मैंने जो यूटेंसिल्स यहाँ देखे हैं उनमें ये है कि इनका आउटर सरफेस कॉपर है, बीच में आई थिंक एल्यूमिनियम है और अंदर स्टेनलेस स्टील है. We've discussed in brief that we should avoid fluoride toothpaste. Interestingly enough, fluoride अगर आप मार्केट में जाएं तो you'll be very hard pressed to find anything except fluoride toothpaste. और there are lots of different brands, और बचपन से ही हम फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करते आ रहे हैं with the impression कि we can't do without it, as if it's the main ingredient जिससे कोई फ़ायदा होगा हमें. This has been proven wrong, और I think यूरोप में as a majority फ्लोराइड टूथपेस्ट नहीं यूज़ होता, और वहाँ पे काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है other than फ्लोराइड.
whereas अमेरिका में again you'll be very hard pressed to find anything in a good store, a good grocery store. उसकी जो वजह है आई वुड से कि आपकी ब्रेन जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, एंड इट्स बीन लिंक्ड टू अल्जाइमर्स डिजीज़. बेसिकली इट्स ट्राइंग टू मेक यू मोर प्लायबल एंड मोर अग्रीएबल टू अथॉरिटी. फ्लोराइड का ये एक असर है बॉडी पे, विच इज़ बेसिकली अफेक्टिंग योर माइंड. सो ये बेसिकली द गवर्नमेंट्स वुड वांट कि ऐसी चीज़ हो आपके पानी में, बल्कि अमेरिकन पानी में भी फ्लोराइड डाला जाता है. अलॉन्ग विद दैट जो है गलती डेंटिस्ट कम्युनिटी करती आ रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ मर्करी फिलिंग्स. मर्करी वॉज हिस्टोरिकली रिकग्नाइज्ड कि जब मर्करी फिलिंग आई भी थी तो दे वर डेंटिस्ट हु अपोज दिस एंड सेड कि नहीं मर्करी नहीं यूज़ होनी चाहिए. बट जब आपको पता है कि एक चीज़ में फंडिंग शुरू हो जाए या एक सर्टेन बॉडी किसी चीज़ को ऑफिशियल कर दे तो वो एक चीज़ कॉमन बन जाती है. फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको वही पढ़ाई जाती है. Mercury leaches into your body. I have a feeling it leaches into your body and affects every organ of your body. And mercury is very toxic, and it is also a cause of cancer. So I know people, many people. I know one, but I know there are many more people जिन्होंने अपनी मर्करी फिलिंग्स रिमूव करा के एक ज़्यादा हेल्दियर अल्टरनेटिव लगाया हुआ है, सेरामिक एनामल. नेक्स्ट I'd like to move on to plastic which is a modern problem. मतलब कौसर भाई, मतलब I'd like कि आप मुझे कोई एग्जांपल दें. बड़े नुमायाँ एग्जांपल्स नज़र आते हैं about how people use plastic and they add something hot to it. आपके ज़हन में कुछ आ रही एग्जांपल? बेसिक एग्जांपल, आप मार्केट में गए, आप कोई गर्म फूड आइटम ख़रीद रहे हैं तो वो आपको यूजुअली रोटियों में एग्जैक्टली, सालन भी एग्जैक्टली, इट्स नाइटमेयर. बेचारे लोग मतलब यू सी पीपल जो अपना खाना लेके जा रहे होते हैं और वो डायरेक्ट प्लास्टिक में सालन होता है, डायरेक्ट प्लास्टिक में चने होंगे जी जी ऐसे. और अगर कोई मेहरबान होगा तो रोटियों के ऊपर कोई अखबार लिपटी होगी जी, अदरवाइज़ वो रोटियां भी डायरेक्ट प्लास्टिक में ही, वो साथ अपनी स्टीम के साथ भी वो थोड़ी नरम होती जाती हैं. और प्लास्टिक का अगर उस पर नोटा लग गया तो आप समझ लें कि उसको एक प्लास्टिक की केमिकल की बारिश भी मिल रही है. अच्छा. तो और एंड द मोस्ट डेंजरस प्लास्टिक इज़ द प्लास्टिक जो सबसे पतला होता है. तो लिफाफे से पतला तो कोई प्लास्टिक नहीं होता ना. तो please, whoever hears this, please stop using plastic for food, hot food. Whenever you go to a restaurant, if you know you're going out, please buy some glass. मार्केट में हैं, बॉक्सेस आते हैं. अनफॉर्चुनेटली उनकी लिड्स मोस्ट कॉमनली अभी तक मार्केट में प्लास्टिक के ही हैं, मगर सम ऑफ देम क्लेम कि उस प्लास्टिक में BPA नहीं है. BPA is the most recognized dangerous chemical जो होता है प्लास्टिक में. मगर प्लास्टिक is a complex thing. I would try to avoid it altogether. मगर at least buy the ones जिसमें लिखा होता है कि जो lid है वो BPA free है. One other thing that I'd like people to consider is basically we've covered plastic in food. And I want to consider and ask people what would be a good alternative for a plastic balti.
नहीं, इवन इन गुड कॉफ़ी स्टोर्स, good cafes, I would suggest whenever you go, sit there, have a cup of coffee there in their ceramic mugs. अगर आप उनका कप लेंगे तो वो आइदर स्टायरोफोम का होगा, अगर वो पेपर का भी हुआ अमूमन उस पे भी एक हल्की सी प्लास्टिक सी कोटिंग की जाती है और ब्लीच जी। जो सबसे मुझे क्रेजी बात लगती है ना कि व्हेन वी आर इन अ हॉस्पिटल और हम किसी का हाल पूछने जा रहे होते हैं और वहाँ पे जब वो चाय वाला आता है तो वो एक तो स्टायरोफोम कप में चाय लाएगा, पाउडर वाला दूध होगा उसमें, वाइट चीनी होगी, और उसको कि वो गिरे ना उसके ऊपर भी उसने या प्लास्टिक करते हैं या किसी किस्म का कोई एटलीस्ट पेपर जरूर लगाया होगा, ऊपर रबर बैंड लगाई होगी। अब इमेजिन कि वही वो जो एल्यूमिनियम फॉइल टाइप नहीं होता, ओ something of that. अच्छा, I forgot to add that in my list. I'll add it. वो ठीक नहीं है नहीं, aluminium is it's again very bad for your brain health. Yeah, he said, no, I don't know if it was aluminium paper, लगता उसी तरह था, but he said you can only use this type of sealant with food. You're right. If somebody puts a food in a microwave and puts a plastic lid on it, तो देखें, एक तो जो माइक्रोवेव है ना, आप समझ लें कि वो फूड को न्यूक कर रहा है, इट्स लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। वो फूड को एक नॉर्मल तरीके से हीट नहीं कर रहा, वो एक बड़े ही डीप लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे उसका पूरा नेचर बदल देता है। माइक्रोवेव्स तो अच्छे नहीं होते हैं, तो उस प्लास्टिक ऑफ कोर्स, इमेजिन अगर आप उस प्लास्टिक को भी डालेंगे तो डेफिनेटली आपको उस प्लास्टिक का भी तबरक मिल जाएगा। बट पूरा लाइफस्टाइल है, टू गो लाइफस्टाइल से कहते हैं कि कॉफी कप्स और कोई भी चीज़ वो फिर सारा will have to change होगा, है ना, कि जैसे बाहर स्टारबक्स से कॉफ़ी या डंकिन से उठा लेते हैं, यहाँ पे हम ग्लोरिया जीन्स से उठा लेते हैं किसी और से। हाँ, तो वो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ग्लोरिया जीन्स यूजुअली वो जो है ना, जो प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक देयर imported, या I don't think they're local. नहीं, imported भी तो आप नहीं है ना, but it's plastic in the end of the day. प्रॉब्लम तो जो भी आ रही है वो ऑलमोस्ट वेस्ट से ही आ रही है, हम तो कॉपी कर करके रेगुलेटेड फिर भी है ना। नहीं, आई वुड सजेस्ट कि वो इतना वो भी सेफ प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करें। प्रेफरेबली ना हो तो बेहतर है, आई एग्री, प्रेफरेबली ना हो तो बेहतर है। एग्जैक्टली। अब जो आपने हार्मोन्स की बात की और आपने कहा कि लेडीज़ भी इफेक्ट हो रही हैं, जेंट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, मैं कौसर भाई को बता रहा था, वो स्टार्टेड कि यहाँ तक मुझे किसी डॉक्टर ने कहा था कि डोंट इवन टच प्लास्टिक, डोंट इवन टच इट, इट्स ऑल लीथल प्लास्टिक। हाँ, जीनोमोटो, इफ़ यू डू गो टू चाइनीज़ ऑलवेज चेक विद देम अगर वो जीनोमोटो डालते हैं, और अगर डालते हैं तो जस्ट आस्क देम नॉट टू ऐड टू योर फूड। अदर देन दैट, रेस्टोरेंट्स में मीट टेंडराइजर्स भी यूज़ होते हैं। मीट टेंडराइजर्स का भी प्रॉब्लम ये है कि जब आप मीट टेंडराइज़र आपने अपने फूड में डाला है ना, तो वो आपने जो कंज्यूम किया है तो आप भी अंदर से तो गोश्त ही है ना, तो इट एक्चुअली इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर ओन ऑर्गन्स। जी, उसमें आई लाइक यू टू ऐड समथिंग टू द डिस्कशन के अब घरों में जो ज़मीन के नीचे पाइप्स बिछ रही हैं, दे आर नॉट आयरन एनी मोर, लोहे की नहीं है, अब पीवीसी की है ना। इमेजिन व्हाट नाइटमेयर दैट इज, कि आप बच ही नहीं सकते। ये जो पाइपिंग है ना, कि वो गर्म पानी जब आ रहा है वो जी एक इंच नहीं, एक मिलीमीटर से गर्म प्लास्टिक से गुजर के आ रहा है आपके पास। अगर आपका तकरीबन 10 साल पुराना घर हो ना, हाँ जी, तो you can't use even if you filter the water through a filter, हाँ जी, you can't use that because of the piping. इस ज़माने की इतनी सारी डिजीज़ लोगों को हो रही हैं, वी शुड अंडरस्टैंड कि हम अपने बॉडी को एक we're asking too much from it. It's not designed to manage all these chemicals जो उसके अंदर नहीं होने चाहिए। शैम्पूज़ में
सल्फेट्स होते हैं अब तो बहुत ज़्यादा सल्फेट और पैराबेन फ्री आते हैं गुड एज लॉन्ग एज यू नोटिस्ड यू शुड बाय पैराबेन फ्री सल्फेट फ्री ये केमिकल्स हैं जो शैम्पूज में होते हैं so we What can is the It has been substitute? declared. Can It has been we use declared. anything Sunny, else? substitute is to be एक तो be careful if you have to use देखें If you don't use the alternative is always to go back as close to nature and as close to कम से कम processing so go on the internet there are lots of ways to make your own shampoo all you need is a base and all you need is a good oil और खाली रीठे से भी बाल धोते हैं बहुत किससे हाँ, रीठे से अच्छा। इस्तेमाल करें रॉ गांध में बहुत पानी अच्छा। में डालकर ओके रीठे आंवले सिक्का का ये हाँ मिक्स इनके साथ आपको करके कुछ मिलावट की भी जरूरत नहीं है ओके गुड आंवला इज वेरी गुड फॉर द हेयर ओके closer to nature, closer to lack of process and less dependence on shelved products. ठीक है टीवी पे हमारे एक आते हैं एक हर्बलिस्ट हैं कराची से वो ही इज़ ऑफन ऑन टीवी आई हैड गुड चांस ऑफ हियरिंग वन ऑफ हिज यूट्यूब वीडियोस ही सेड कि आप कभी भी शैम्पू एक अनऑयल्ड हेयर पे ना लगाइएगा आई थॉट इट वाज वेरी गुड टिप ही सेड देखें शैम्पू इज़ हार्श हाँ वो आपको सारे लीच कर लेते हैं नेचुरल he said they said always whenever you shampoo you should have oiled your hair at least 5-10 minutes It happened to me once. I use the hand wash now often. hmm. तो बस जब भी वॉशरूम जाता था तो I always wash my hands with it. I like my hands to smell nice. तो वो क्या हुआ कि after a month or two मैं बड़ा शॉक था कि यहाँ पर I had small spots यहाँ पे. So all my fingers were very scratchy. ड्राइनेस हो गई मैंने कहा ये क्या नहीं it wasn't the dryness. फिर the doctor I went to the doctor ये क्या हो गया keep very good hygiene this is like what's this skin disease उसने जब देखा तो उसने कहा you clean your hands too much कहता you have such a natural occurring bacteria आपकी skin पे and if you use antibacterial soap जो होता है ना अक्सर bacteria कि वो it kills all the good bacteria as well और जिसकी वजह से आपको ये रैश हो गया ये जो बच्चों को हर वक्त बचाया जाता है ना अब आजकल टीवी पे देखे ना क्या कर रहे हैं educating everybody to always just continue lap on all this antibacterial soap any safeguard everybody knew एक ज़माना था when everybody knew कि बच्चे को नंगे पाँव मिट्टी में खेलना चाहिए yes नंगे पाँव बिकॉज उस मिट्टी में शिफा है उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी जब वो बड़ा होगा वो जो मिट्टी है उसके काम आएगी मगर अब तो वो कहते हैं कि ट्रेनर्स पहने हों थोड़ी सी भी मिट्टी लग जाए जैसे भागे जाओ बेटा एंटी बैक्टीरियल सोप लगाओ ये लिक्विड लगाओ मुंह पे भी लगाओ कानों के अंदर भी लगाओ और मतलब इट्स टू मच तो देयर इज़ अ वेरी फेमस बुक कॉल्ड द डर्ट क्योर इन द वेस्ट हैज़ रिकग्नाइज्ड दिस कि प्लीज़ लेट योर चिल्ड्रन प्ले इन डर्ट बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने वेस्ट से ही इतना सारा ये जो पाउडर्ड वॉशिंग लिक्विड्स हैं एंड maybe perhaps we can finally touch on the topic of food and spirituality here in the sense that purity is the basis of any benefit जो आपकी body लेगी any spiritual benefit भी अगर होगा तो purity से ही आएगा कुरान में तैयब का जो लफ्ज़ है वो हलाल से कई ज़्यादा उसका मेंशन है हलाल तैयब is pure like is like the finest हाँ is like मतलब आप समझ लें कि आप हलाल अब इफ़ यू सिफ्ट वीट इज़ इट हलाल और हराम टेक्निकली इट्स हलाल देयर इज़ नो वर्डिक्ट अगेंस्ट इट इन द सेंस के ठीक है बट इट्स नॉट तैयब दैट्स नॉट हाउ यू शुड हैव वीट another point अब ये these all aren't in any specific order they just came into my mind मैं jotting करता रहा हूँ डोंट स्लीप इन अ रूम जहाँ पे टेलीविज़न आपके बेड को इट्स लाइक राइट इन अक्रॉस योर बेड मतलब आप इफ़ यू हैव अ टीवी इन योर रूम डोंट प्लेस इट अक्रॉस योर बेड
बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए, Alright. बिकॉज जो टीवीज़ हैं उनकी अपनी एक रेडिएशन होती है। हाँ वो तो है। या कोकोनट लेके जाएं, सॉरी पीलू पे नहीं, कोलू पे। आप कोलू पे जाएं, कोलू पे वहाँ घुमाएं, घर ले आएँ, फ्रिज में रख लें, उसको कंज्यूम करें। दैट इज़ गुड हेल्दी ऑयल, यूज़ दैट ऑयल। डोंट सोर्स एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड ऑयल्स, बिकॉज वो ट्रैवलिंग में ही उनका काम हो गया है, दे नॉट गुड फॉर यू। नोटिस करेंगे कि कोलू पे वो कोई केमिकल्स नहीं ऐड कर रहा, ही इज़ जस्ट प्रेसिंग इट I think the best and it's a cold press, there's no heat involved. in terms of pressed oil to olive and desi ghee. Desi ghee I think is the safest. Yeah. Desi ghee is the safest. Olive oil is good for topping, don't cook it. Similarly for nuts, if you buy nuts, whole nuts खाने चाहिए. I would suggest whenever you have any kind of nut, don't overdo it, don't have too much, and preferably have mixed nuts. Have them at a snack time, don't have them with your main meal. And the best way to have nuts is to buy shelled nuts. Keep them shelled and keep them in a fridge. Throw your microwave out. Chicken is a problem. Avoid, although मैंने चीज़ों का ज़्यादा हम डिस्कस कर रहे हैं, but very important point is don't sleep late. Don't sleep late, and after Fajr stay awake because आपका रिज़्क भी इफ़ेक्ट होता है